Hello. Good morning, everybody. Good morning, How are sir. you? I am fine, sir. Okay. Keep smiling. Now, today we will do the future tense. We are missing, okay? Listen. Future tense. What do you mean by future tense? भविष्य काल. Yes. Future tense means Bhavishyat Kal. She is right. What's your name? आस्था सिन्हा. Yes, Astha Sinha. She is right. Future tense. Okay. This is called Bhavishyat Kal. Means whatever happens in future, that will be under this future tense. Okay. Similarly, this particular tense has also four forms. The first is known as future indefinite. Future indefinite or future simple, you can say. Both are same. Indefinite. Recognition. Ga, gi, ge. Whenever you find ga, gi, ge at the end of the verb in Hindi sentences, okay, you simply understand that this particular sentence belongs to this one. Okay, then we will have to use this rule. I, we, shall, you, he, she, it, they, with will be followed by will. Okay? We will use shall and will according in order to translate into English. Okay, take the example, then it will be clear. Otherwise, you can't understand it. Okay, मैं खाऊंगा. What I see that ga is now coming at the end of the verb. Okay, means it says that this particular sentence belongs to future indefinite. Okay, now here we will use this rule. We will apply this rule. Shall will be used with I and we. Will be used with you, he, she, it and they. Remember, okay? Now come. My means I. What will I write here? I shall. Yes, is right. I will write here shall. I shall eat. Okay, very good. I shall eat. Here V1 will be used, okay? Not V2, not V3. If you write in this way, then the sentence will be right. और अगर हम लोग I shall की जगह I will लिखेंगे तो? Okay, that will be also right, but the meaning will be something different. If you use will here, it means that you must do it. You must eat. Okay, but generally, shall will be followed by, I will be followed by shall. It so happens. If you use will, that will be also right, but generally, I will be followed by shall. You will be followed by will. They will be followed by will. He will be followed by will. She will be followed by will. Name will be followed by will. I think it's clear now. Now come to this. मैंने हिंदी में ही बताया. बता रहे हैं ना, जैसे वह खाएगा, वह खाएगा. देखिए, वह मीन्स He. नियम क्या कहता है? ही के बाद ही के बाद क्या लिखेंगे हम लोग? He will. यस, ही के बाद विल लिखेंगे. देखिए, ही के बाद क्या लिखा है? ही के साथ क्या यूज होगा? विल. ही विल. और क्या करेंगे? Eat. ईट. अगर हम एट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा. Yes. यस, क्यों? क्योंकि नियम कहता है V1 लगाने के लिए. क्या कहता है? V1. ही विल ईट. अगर ऐसा हम करते हैं तो ये सही होगा. अगर हम लिख देते हैं ही विल एट, तो क्या होगा? ये गलत हो जाएगा. इस फॉर्म में भी1 लगेगा. हाँ, इस फॉर्म में V1 लगेगा.
यहाँ पर रूल 2 कर लीजिए, रूल 2 V1 अप्लाई V1। क्लियर? दो नियम लगेंगे, पहला नियम ये है, दूसरा नियम V1 है। ठीक है? फ्यूचर इंडिपेंडेंट सिंपल था, इसमें ज्यादा दिमाग देने की जरूरत नहीं है, ये आसान। अब आ जाए फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस। मेरा काम है किसी तरह से आप लोगों को टेंस सिखा देना, समझा देना, दिमाग में घुसा देना, चाहे अंग्रेजी बोल के, चाहे हिंदी बोल के, चाहे 10 बार नियम को बता कर आप लोग समझ जाइए। दैट्स ऑल। फ्यूचर इम्परफेक्ट, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा। अगर ये सब में से कोई एक आता है तो समझ लीजिए कि फ्यूचर इम्परफेक्ट है। ठीक है? एग्जाम्पल, मैं खा रहा हूंगा, रहा हूंगा आ गया, इसका मतलब ये फ्यूचर इम्परफेक्ट है। इसका नियम इसमें लगेगा। नियम क्या है? रूल 1। रूल 1 ये है, आई और बी के साथ सेल बी प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है? उसके बाद यू, ही, सी, इट, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, नेम, दे के साथ हम लोग विल भी जोड़ेंगे प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है? वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। अब देखिए, यहां आइए एग्जाम्पल में, मैं मीन्स आई। आई के साथ क्या बोल रहा है नियम? आई सेल बी। क्या कर रहा है? ईटिंग। इट कर रहा है। इट नियम क्या कहता है? इट के साथ क्या जोड़ना है? आईएनजी हम जोड़ दिए। एकदम बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना है। अगर ऐसा कर दिए तो ये सही हो गया। एक और ले लीजिए, वह जा रहा होगा, वह मीन्स ही किसके द्वारा फॉलो किया जाएगा? विल बी। ही विल बी गो, ही विल बी गो लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे? आईएनजी। यस, आईएनजी जोड़ देंगे तो ये सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि नियम कहता है कि वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना है। ही विल बी गोइंग, she will be going, she will be reading, they will be reading, I will be reading, he will be playing, like this, like this, like this. You can make several sentences, you know. Is it clear? Now, come to this one. Next. This is the second form. Third is perfect only. Okay? बस चुके होंगे, चुकी होगी,
चुका होगा। सिमिलरली, मैं खा चुका हूंगा। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या होगा, ये होगी, ये होंगे, इन छहों में से कोई भी एक आ गया, समझ लीजिए कि वो फ्यूचर परफेक्ट है। हमको यहाँ इस वक्त इसका नियम का प्रयोग करना है। क्या करेंगे? रूल 1, आई एंड बी के साथ, बल्कि सबके साथ ही भी रहेगा तो भी करना है। क्या करना होगा? सेल है प्लस V3 का प्रयोग करना है। बस एक नियम, सेल है प्लस V3 का प्रयोग करना है। कीजिए। मैं खा चुका हूंगा, मैं मीन्स आई। आई। बोलिए क्या है? आई सेल हैव इट लिखे, सही होगा? नहीं, ईट लिखेगा तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ हमको क्या करना है? इटेन। अगर इटेन करेंगे तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ नियम का पालन किया है। आई शैल हैव इटेन, ही विल हैव गॉन, दे विल हैव स्टडीड, यू हैव प्लेड, है ना? यू विल हैव प्लेड। अब यहाँ पर लिखिए, तुम पढ़ चुके होगे। तुम यू शैल हैव करिएगा, कर सकते हैं। यू शैल हैव रेड या स्टडीड। क्लियर? हम लोग पढ़ चुके हैं। खाली यू की जगह वी कर दीजिए। राम पढ़ चुका, राम शैल हैव ईटन। आस्था पढ़ चुकी, आस्था शैल हैव स्टडीड। ठीक है। अब इसके बाद लास्ट जो बच रहा है वो हम लोगों का 12वां नंबर, वो क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 12 फॉर्म जिस किसी भी बच्चे को याद रहेगा, वो सही तरीके से अंग्रेजी लिख लेंगे, अपनी भावना को व्यक्त कर लेंगे, पत्र में लिख लेंगे, लेटर लिख लेंगे। कहीं कोई व्यक्ति कहीं भी नहीं होगा, देश विदेश दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। ऑल 12 फॉर्म्स यू विल हैव टू रिमेंबर फॉर गुड एंड फॉरएवर, यू नो। दी रही होगी। Whenever you find anyone at the end of the verb in Hindi sentences, you simply understand that that particular Hindi sentence belongs to verb number 12, future perfect continuous. Okay? Now take the example. वह 5 बजे से पढ़ता आ रहा होगा। Now what I see? ता आ रहा होगा. At the end of the verb ता आ रहा होगा comes. Okay? If it comes, then I understand that this particular sentence belongs to future perfect continuous. Here the rules of future perfect continuous will be applied. Clear? The first one. He Yes. He shall be reading
Okay, okay. He shall He shall be reading. Be reading. no. Shall have been Reading. reading. Since. Yes. Reading. Since 5 o'clock. Yes, is right. 5 o'clock. Rule is shall have been. Second rule is verb plus ing. Third rule is since and for. Only three rules. Only three rules you will have to apply. And if you write in this way, then the sentence will be right. And if you don't follow all these rules, you will not be able to make a correct sentence. Is it clear? इस रूल में shall have been लगेगा. shall have been, will have been भी यूज कर सकते हैं कहीं कहीं, लेकिन shall have been का ही प्रयोग होता है. और अगर यदि यहाँ पर 5 o'clock नहीं रहता तो 5 बजे नहीं 5 6 के जगह 4 क्यों नहीं रहता? 5 साल, यही ना, 5 साल से पढ़ता आ रहा होगा, यही ना. तो यहाँ हम क्या करते हैं, since के जगह पर for देते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि 5 साल जो है वो निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित है. लेकिन 5 बजे निश्चित है. 5:01 से नहीं, 4:49 से नहीं, पक्का 5 बजे से पढ़ रहा है वो. इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ टाइम है. जब पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग होता है तो वहां सिंस लगाते हैं. पीरियड ऑफ टाइम रहेगा वहां फॉर लगाते हैं. क्लियर? लेकिन इस फॉर्म में shall have been लगेगा ही लगेगा. हाँ, वो नियम है. और verb के साथ ing भी है. हाँ, वो नियम है. दो नियम. क्लियर? Any objection? Any doubt? Now the tense is over. Okay? Thank you very much. See you in the next class.